Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's topic is advocate and the bar. So, what is the correlation between an advocate and bar? First point, friendship with fellow members. इसमें Lord Macmillan, in a speech to the bar, once said, "But indeed, a lawyer can never feel himself a stranger at a gathering of members of his profession in whatever quarter of the globe. For I am convinced that there is no profession which binds its members in a closer fraternity. It is not for nothing that in the law we all each other brothers. If I were to seek for the explanation of the bond which binds in brotherhood the servants of the law throughout the world, I venture to think that I should find it in our common devotion to a great ideal, the promotion of the orderly progress of civilization." तो वकला की जो बरादरी है ये दुनिया के कोने कोने में मुल्क पाकिस्तान में करिया करिया पे जो है वो मौजूद है। हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील, हर बड़े शहर में वकला की बार एसोसिएशन हैं, वकला की काउंसिल हैं। तो एज ए मेंबर ऑफ द बार जो है आपका अपने कोलीग्स के साथ, अपने अटॉर्नीज के साथ, अपने वकला के साथ, अपने हम पेशा लोगों के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो फ्रेंडली नेचर का होना चाहिए. It should be based on love and affection, mutual cooperation and coordination. Have respect and give respect. एक दूसरे का एहतराम होना चाहिए, एक दूसरे का मान होना चाहिए, एक दूसरे का पास होना चाहिए, एक दूसरे का लिहाज होना चाहिए. तो इस हिस्टोरिकल कोटेशन के थ्रू हम ये चीज़ जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है, शोबे वकालत एक ऐसा शोबा है जिसमें तमाम वकला बरादरी जो है आपस में भाई भाई है और एक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है. और आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में हो, अपने मुल्क के किसी शहर में हो, तो आपको जब आप अपने प्रोफेशन के लोगों में बैठते हैं या खड़े होते हैं तो आपको एक अपनायत का एहसास हो कि हम घर से दूर नहीं हैं, हम अपनों में हैं. वी आर क्वाइट एट होम, वी आर एट ईज. और दिस इज़ द atmosphere of brotherhood. This is the environment of fraternity which our Islamic teachings have also stressed again and again. So वकला बरादरी भी एक ऐसे बंधन में बंधी हुई है, एक ऐसे ताल्लुक रिलेशनशिप में बंधी हुई है कि आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में हों और अपने हम पेशा लोगों में आप मौजूद हों तो आपको एक अपनायत का एहसास होगा, आपको गैरों का एहसास नहीं होगा. तो एक दूसरे का जो एज ए कुलीग एहतराम करना है, इस काले कोट का जो एहतराम है, इस डिग्री का जो एहतराम है, इस लेसन्स का जो एहतराम है, इस बरादरी का जो एहतराम है, तो कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं जो इतना यूनाइटेड हो जितना ये वकला का प्रोफेशन यूनाइटेड है. वी should be proud of it and we should flourish and we should nourish positive values in ourselves as well as in our bar associations, in our environment, so that we will be respected everywhere, in every nook and corner of the world. A great pleasure of life at the bar is to be found in the help which is readily given by one member of the bar to another. At the bar, many lasting friendships are made, and if any member of the bar is in trouble, all others, however eminent, are at the disposal of the fellow member. As a customary rule, the ordinary advice and services to the family of a deceased lawyer should be rendered without charge in most cases, and that where the circumstances make it proper to charge, the fee should be less than that in case of other crimes. A retainer may properly be accepted in a suit against an advocate, yet as a rule an advocate should be reluctant to accept it and should try to
get the matter settled in an amicable way. So अब प्रैक्टिकली ये तो एक आइडियल हमने एक प्रिंसिपल सेट कर दिया कि हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ खुश होकर मिलना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली व्हाट कैन वी डू इस एहतराम में, इस इज्जत में हम जो है अमली तौर पर क्या करैक्टर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम एज एडवोकेट्स घर से निकलते हैं, सारा दिन हम अपने शाम तक अपने केसों में पेश होते हैं और उनके बाद अपने ऑफिस में बैठ कर नेक्स्ट डे के जो है वो केसेस तैयार करते हैं। सो एक जो प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में जहाँ आप सारा दिन रहते हैं तो बाहर जो है एक किस्म का आपका दूसरा घर है, जहाँ आप अपना प्लेंटी ऑफ टाइम अपने दिन का गुजार रहे हैं, तो वो जगह आपका दूसरा घर है। योर बार इज योर अनदर होम। और उस घर की हिफाजत के लिए, उस घर के एहतराम के लिए वट एवर यू हैव टू सेक्रीफाइस यू शुड। मिसाल के तौर पर जब आप बार में जाते हैं, आपके बार के अंदर आपके कोलीग्स अच्छे अच्छे आपके दोस्त बनते हैं, और वो जो रिलेशनशिप बार के अंदर अपने दोस्तों के साथ आपके, अपने हम मनसबों के साथ, अपने हम पेशा वकला के साथ आपके जो तल्लुकात होते हैं वो लाइफ टाइम तक आपके साथ वो। और आप नदी के दो किनारे हैं, दरिया के दो किनारे हैं जो हमेशा एक दूसरे के लिए लाशो मलजूम है और तमाम ज़िंदगी आपस में एक दूसरे के साथ चलते रहेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली उसमें यह है कि जब कोई वकील जो है फौत हो जाता है तो उसके घर का पता करना, उसके बच्चों के लिए कोई हेल्प आउट करना, उस चीज़ों को मैनेजमेंट करना, दिस इज योर प्रैक्टिकल सर्विस टू योर कोलीग्स, टू योर ब्रदर्स। उस डिसीज एडवोकेट का कोई अगर डिस्प्यूट पेंडिंग है उसमें किसी कोर्ट में, तो उसको आप बगैर फीस के जो है, तो बच्चों का कोई सक्सेशन सर्टिफिकेट है या और इस तरह के मामला हैं, तो यू हैव टू हेल्प देम इन अ प्रैक्टिकल फॉर्म। प्रैक्टिकली यू हैव टू सर्व ऑल द मैनकाइंड, बट योर कोलीग्स, योर नियर्स एंड डियर्स, जिनके साथ आपका एक अच्छा वक्त गुजरा है और वो आपके नियर्स एंड डियर्स हैं, आपके करीब रहे हैं, आपकी कुर्बत में रहे हैं, तो आप पर लाजिम है उस मरहूम की फैमिली को लुक आफ्टर करना, जहाँ तक हो गए अकॉर्डिंग टू योर पावर एंड स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू योर रिसोर्सेज। जहाँ तक हो सके जज्बे के साथ आप किसी भी मरहूम वकील की फैमिली को जो है वो किसी न किसी भी कॉर्नर में, किसी न किसी फॉर्म में आपको आप हेल्प करते हैं। दिस इज अ वर्च्यू एंड दिस इज ऑल्सो अ प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन with reference to the humanity and dignity of your profession. So, आप कि अगर वकील भाई का कोई मामला है कोर्ट में, तो अपने वकील भाई के खिलाफ जो वकाला नहीं देना है, ये भी एक लीगल एथिक्स के अगेंस्ट चीज़ है। whether it is not illegal in the background of the court, but morally as a profession ये अच्छा नहीं लगेगा कि आप अपने भाई के मुकाबले में कोर्ट में उसके सामने खड़े हो। दैट इज द एम्बैरसिंग पॉइंट, व्हाट्सएवर जो भी हो। और दूसरा जो है, जब भी आपकी कम्युनिटी में से किसी पे भी कोई मुसीबत आए, कोई बुरा वक्त आए, तो उस वक्त जो है उसके साथ खड़ा करना, तसल्ली देना, उसको तशफ़ी देना, उसकी ठास बंधाना, उसको एनकरेज करना, उसके काम आना, यही ज़िंदगी है और यही प्रोफेशन है कि आपके हम पेशा वकील के साथ अगर कोई मामला दरपेश है तो आपको सबसे बढ़ चढ़ के अगली सफ़ों में खड़े होना चाहिए, बजाय कि आप घर पे बैठना रिलेक्टेंट होके। सो दिस इज़ नॉट द लाइफ and this is not the aim of the goal of the life. So we should be helpful, we should be supportive, we should be loving, we should be caring, we should be affectionate in whatsoever corner our brothers demand us, require us. So तो अगर किसी वकील के साथ मामला बनता है तो उसके शाना बशाना खड़े होना, ये आपका एक दोस्ती का भरम भी है और ये आपकी इंसानियत भी है और ये नीड ऑफ द आवर भी है, क्योंकि इट इज़ कॉल्ड द फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। सो जब कोई बंदा मुसीबत में होता है, उसको आप हेल्प करते हैं, उसके काम आता है, तो सारी ज़िंदगी आपका भ्रम रखता है, आपका मान रखता है, आपका वो इंसान याद। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ योर, दिस इज द डिग्निटी ऑफ योर। The members of the bar should trust each other.
A discussion outside court between members of the bar about a case in which they are engaged ought never be repeated unless it is absolutely necessary to do so, because the repetition of discussion places advocates in a very awkward position. कोर्ट के अंदर आपका अपने क्लाइंट को सपोर्ट करना, पूरी तरह उसके केस को जो आर्गुमेंट करना है, this is your worship, this is your sincerity, this is your profession, this is your service, this is your humanity, this is your conduct. लेकिन कोर्ट के बाहर जो है तो आप फिर अपने कुलीग के साथ घुल मिल जाएं और फ्रेंडली माहौल में आप उसको करें। वो केस की जो ऑकवर्ड बातें हैं वो कोर्ट के बाहर आकर सुबह शाम वही रिपीट करना और अगले बंदे को एम्बैरस करना, that goes against your character. This is not your character. कोर्ट की बात कोर्ट में ख़त्म करके अब जब बाहर निकलें तो फिर आप गले मिल के और अपने भाइयों की तरह जो है, एक अच्छे कोलीग्स की तरह जो है अपनी ज़िंदगी को आप इंजॉय करें और आपस में कंस्ट्रक्टिव और जो तामीरी बातचीत है, कुछ पॉइंट समझने के लिए, कुछ लीगल कुथियाँ सुलझाने के लिए यू कैन डिस्कस विद ईच अदर, बट it is not your morale to repeat the awkward things which have been present in the court again and again, और एक केस को जो है वो बुनियाद बना के अगले को जो है आप दोबारा से बार बार उसको टेस्ट किया जाए, तो it is not appropriate. An advocate should always be frank with his opponents. If it turns out that there are documents which have not been disclosed but which ought to have been disclosed, the advocate should show them to his opponent. तो अगर आपके एडवोकेट की कोई खामी है या कोई कोताही है, कोई सुस्ती है, कोई शॉर्ट कमिंग है, कोई डिफेक्ट है, कोई डेफिशिएंसी है, तो उसको एक भरे कोर्ट में उसको तमाशा बनाने की बजाय आप टेक्निकल तरीके से जो है अपने केस को विन करें। आपने किसी को कोई एम्बैरेसमेंट नहीं करनी, किसी की तज़हीक नहीं करनी, किसी को डिग्रेड नहीं करना। यू हैव टू प्रेजेंट योर केस एंड इफ यू विन योर केस, दिस इज योर डिग्निटी। आपको बताने की जरूरत नहीं होती कि मैंने ये किया है या मैंने ये करवा लिया है। योर एबिलिटी will help you win your case, and that is your ultimate victory, which increases your honor in the eye of your colleagues, in the eye of the people of your city, in the eye of your clients, and that is the dignity and glamour of it. Professional courtesy with opponent. The members of the bar are supposed to observe rules of professional courtesy. The question of professional courtesy may arise in many cases. For example, a lawyer may force the opponent lawyer to attend the trial on a particular day when it is inconvenient for the latter and when any other day could conveniently be fixed. The same thing could happen in the case of extending the time for pleading, for signing a bill of exceptions and the like. In all these cases, it is customary to grant the favor sought as a professional courtesy, and in all these cases, it is left to the discretion of the counsel to grant the favor of the requested subject, however, the approval of his clients. In the same way, the agreements and engagements made by lawyers in and out of the court with other lawyers are to be carried out by them. These agreements should be faithfully performed even if they are binding in conscience only. This is necessary for maintaining the dignity of the profession and its प्रोफेशनल कर्टसी ये है कि आप जो है अदालत में एहतराम और इज्जत से बात करें, अपने जज के साथ भी, अपने पेशेवर वकीला के साथ भी। और क्वेश्चन ऑफ प्रोफेशनल कर्टसी ये है कि अगर आपको कोई अपना वकील भाई रिक्वेस्ट करता है कि यार फलां डेट पे मैं कन्वीनियंट नहीं हो, तो फलां डेट फिक्स कर लेते हैं आप उसमें आर्गूमेंट्स करने की, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, इफ बोथ एडवोकेट्स आर एग्रीड अपॉन ए डेट विद द कंसेंट ऑफ द क्लाइंट्स, तो उसमें क्या हर्ज है, बजाय कि आप अपनी जिद पे अड़ जाएं और चीज़ों को मैनिपुलेट करें और हर धर्मी का मुजाहरा करें, तो फिर जो है इट वुड बी कैलकुलेटेड एज ए नेगेटिव पॉइंट ऑफ योर कैरेक्टर। सो you should be quite polite and civilized in your dealings in the court as well as out the court, and this will increase your honor and esteem in the eyes of other people. Respect for seniors.
बादब बानसी बेअदब। तो अदब और एहतराम जो है ये पहली सीढ़ी है। तो खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों। तो जो एक रिस्पेक्ट एंड ओबीडियंस है ये आपकी ज़िंदगी का जेवर है, आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। रिस्पेक्ट फॉर सीनियर्स, अपने बड़ों को एहतराम करना। एवरी एडवोकेट शुड रिस्पेक्ट हिज सीनियर्स एट द बार इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज ओन। आप चाहे जितनी मर्जी रिच पर्सन हो, आप चाहे जितना मर्जी आलिम फाजिल हूँ, लेकिन जो उम्र में आपसे बड़ा है उसका एहतराम और उसकी इज्जत करना आपके शरीफ कौम की कमासी करता है, लोगों में आपकी इज्जत को बढ़ाएगी और अल्लाह के निगाह में भी आपका जो है तकवा का दर्जा बढ़ेगा। इस तरह की चीज़ें जो हैं, एक जो है रिस्पेक्ट और एहतराम का माहौल जो है, जो आपसे सीनियर वकील हैं उनका एहतराम करना, उनके लिए जगह छोड़ना, उनको एहतराम से बिठाना, उनके एहतराम में उठना, उनको अदब से सलाम करना, उनके छोटे छोटे काम में उन्हें असिस्ट करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसको परफॉर्म करके यू कैन अर्न रिस्पेक्ट। ये आपकी इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट, आपका किरदार, ये भी आपकी अर्निंग है। ज़रूरी नहीं कि जो पैसे मिलते हैं हम वॉलेट में डालते हैं वही हमारी अर्निंग है। हमारा अच्छा कैरेक्टर भी हमारा अच्छा है, हमारी गुड रेपुटेशन भी हमारा अच्छा है, अगर हम उसको समझें डीपली। According to the rules laid down by the Pakistan Bar Council, junior and younger members should always be respectful to senior and older members. पाकिस्तान बार काउंसिल में जो रूल्स बनाए गए हैं लीगल एथिक्स के हवाले में, उसमें भी इस चीज़ पर जोर दिया गया कि अपने से बड़ों का एहतराम करें। सीनियर वकला हैं, जो आपके बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, अपनी उम्र में बड़े हैं, तजर्बे में बड़े हैं, उनसे सीखें, उनका एहतराम करें, उनको इज्जत दें, उनका भी भरम कायम हो और आपका भी ईमान बढ़े, वाइस वर्सा। Young people are expected to be not only courteous but also helpful uh, to their seniors, as well as uh, both parties should have respect for it. जूनियर्स को सीनियर्स का एहतराम करना होगा और सीनियर्स को भी जो है वो यंग और जूनियर्स को होकर जो है वो दस्ते शफ़क़त करना पड़ेगा, ताकि एक मोहब्बत और शगानत की जो फ़ज़ा है वो प्रोफेशन के ऊपर भी है। There are more than one. However, before accepting a retainer, the substituted lawyer should satisfy himself before assuming the charge that the outstanding matters, including the payment of fee during the existence of the professional relationship between the client and the former advocate, have been fully settled. If these matters have not been settled, he should try to settle the matters, and if he is not successful in doing so, he should refuse to accept them. As a matter of rule, uh, the previous counsel should deliver over to the second advocate all documents and papers in his profession concerning it. अगर एक क्लाइंट ने एक वकील को छोड़ दिया है और उसने दूसरा वकील कर लिया है, तो जो पहले वाला फॉर्मल वकील है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ऑनेस्टली और सिंसियरली जो है तमाम डॉक्यूमेंट्स और फाइल जो है वो दूसरे वकील को हैंड ओवर करे, क्योंकि इट इज़ द राइट ऑफ द क्लाइंट को जिसको मर्जी वकील करे, उसमें अना बना लेना, उसमें लोगों के साथ एनमिटी बना लेना, उसमें मैलिस और जेलसी फील करना, उसमें कोई रैट रेस शुरू कर देना, दैट इज अगेंस्ट दैट थिंग्स। अगर एक क्लाइंट आपसे मुतमिन नहीं है तो कोई बात नहीं, वो फाइल उठा के दूसरा वकील कर ले और आपके पास उसके जो डॉक्यूमेंट्स एक अमानत के तौर पर, एक ट्रस्ट के तौर पर वो आपको हैंड ओवर करने हैं, इट इज़ योर morally obligation. He may, however, withhold such papers if he has not paid his fees, which he has already earned by appearing in the case. लेकिन अगर आपको उस क्लाइंट ने फीस पे नहीं की, जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, तो फिर आप उससे डिमांड कर सकते हैं कि भाई जो मैंने सर्विसेज आपको प्रोवाइड की हैं उसके अगेंस्ट जो मेरा हक बनता है वो मुझे फीस पे करो, और फिर अगले वकील की क्या करो, दैट वुड बी ऑन योर राइट स्टैंड, फिर आपका जो मुद्दा है वो ठीक होगा। In any case, he should not withhold any vital information which is to be given to the second advocate.
लेकिन उसमें अगर कोई अहम ऐसी इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसा क्लू है, कोई ऐसी ग्राउंड है, तो वो फॉर्मर वकील जो है वो लेटर वाले को बता सकता है, उसको गाइड कर सकता है कि भाई इस केस के लिए ये मैंने वर्किंग की है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने निकाला है और ये तुम्हारी जो है आर्गुमेंटेशन में तुम्हें हेल्पफुल होगा। तो दैट इज अ गुड जॉब, दैट इज अ गुड जेस्चर विद इन योर प्रोफेशन। However, according to the rules framed by Pakistan Bar Council, a client's offer of assistance of additional advocate should not be regarded as evidence of want of confidence, but the matter should be left to the determination of the client. लेकिन अल्टीमेटली ये क्लाइंट ने डिसाइड करना है कि उसने अपनी एविडेंस किस वकील को प्रोवाइड करना है, किस वकील से उसने अपना केस लड़वाना है, किस वकील पे उसने भरोसा करना है। अल्टीमेटली इट वुड बी डिसाइडेड by the client. An advocate should decline association as a colleague unless the dues of the advocate first retainer are paid. Rules of etiquette of the bar. In any case, a lawyer should not interfere directly or indirectly between other advocates and their clients because this amounts to a violation of the long established etiquette. तो किसी भी मामले में जो है बेजा मुदाखलत करना ये वैसे भी समाजी सेटअप में भी एक वायलेशन है। तो प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर किसी आपस में किसी वकला का डिस्प्यूट है या वकला का किसी क्लाइंट के साथ है, तो किसी वकील को नहीं जरूरत है किसी के मामले में जो है वो अननेसेसरी इन्वॉल्व हो। To uphold dignity and high standing of profession. This is the utmost duty of every advocate. It is the duty of every advocate to uphold at all times the dignity and high standing of his profession, as well as his own dignity and high standing as a member thereof. एक वकील को जो है सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना है, फिर अपने अपने कोलीग्स को प्रोटेक्ट करना है, अपने प्रोफेशन की ऑनर और वकार को जो है प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद he is the custodian of the laws of the land, he is the custodian of the constitution, and not to communicate object of controversy without the consent. An advocate shall not communicate about a subject of controversy with a party represented by an advocate in the absence and without the consent of such advocate. So अगर एक पार्टी कंट्रोवर्सी है तो उसको कंसेंट के बगैर जो है वो किसी को कम्युनिकेट जो है वो नहीं करना। तो वो कम्युनिकेशन जो है वो आपके पास एक अमानत है। Not to argue except in open court. An advocate shall not, in the absence of the opposing counsel, uh, communication with or argue before a judge or judicial officer, except in open court and upon the merits of a contested matter pending before such judge or judicial officer. Nor shall he, without furnishing the opposing advocate with a copy thereof, address a written communication to a judge or judicial officer concerning the merits of contested matter pending before such judge or judicial officer. So, this rule shall not apply to ex parte matters or in respect of matters not sub judice before the judge or judicial officer. तो किसी भी वकील को अपने अपोजिट काउंसिल की मौजूदगी में जो है आर्गू करना या कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट्स पेश करना या अपोजिट काउंसिल की
गैर हाज़िरी से फ़ायदा उठाते हुए अपने पास से कोई बात जो है वो एविडेंस में लिखवा लेना और कोर्ट और अपने अपोजिंग काउंसिल को मैनिपुलेट करने की कोशिश करना। सो दिस इज़ द अगेंस्ट द लीगल एथिक्स एंड वी शुड अवॉइड सच